امام حسین علیہ السلام اور جانثاروں کا چہلم جلوس کا اگلا حصہ حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ کھارا در پہنچ گیا ہے۔ محمد کو جو پہچانتی دنیا، زینب کے کھلے سر پہ یہ سنگ باری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، جنت میں قدم رکھتے نہیں سرور و ریحان، جنت میں قدم رکھتے نہیں سرور و ریحان، جنت میں جو مولا کی عزاداری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، مظلوم کی دنیا میں، مظلوم کی دنیا میں طرفداری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری۔ چراغ جلتا رہا، چراغ جلتا رہا، جو قافلہ تھا رواں وہ قافلہ ہے رواں، سفر بن کے سنا، سنا کے ساتھ اذاں، بریدہ سر کی صدائیں فضا میں پھیل گئی، دریچوں آنگن و گلیوں میں تپتے صحرا سے، زمین و عرش خلاؤں سے اور فضاؤں سے، دنوں میں رات میں جنگ میں کوہ ساروں سے، صدائیں آنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ایک بار ہوا، یہ ایک بار ہوا اور لازوال ہوا، سنا کی نوک پہ سبحان ربی اللہ، پکارا کلمہ توحید بھی جزاک اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، حسین دین بھی ہے اور دینیات بھی ہے، حسین کلمہ توحید کی حیات بھی ہے، حسین رمز خدا بھی خدا صفات بھی ہے، حسین بارہ اماموں کی کائنات بھی ہے، حسین سے ہے آیات، حسین سے ہے آیا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، وہ گود فاطمہ زہرا کی ہو کے گے تپا، وہ صحن کعبہ ہو پشت رسول یا کے سنا، فضائے جنگ ہو یا ہو پیام امن و اما، نہ دیکھے تیر نہ تلوار گر ہو حکم ازاں، حسین کا ہے بیان، حسین کا ہے بیان لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، حسین والوں کی پہچان ہے عزاداری، حسین والوں کی تو جان ہے عزاداری، حسین والوں کا ایمان ہے عزاداری، حسین والوں کا اعلان ہے عزاداری،
حسینیت کی زبان حسینیت کی زبان لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ وسیع ہے کرب و بلا تو کوئی جواز بھی ہے لٹا ہے گلشن زہرا تو کوئی راز بھی ہے یہ راز وہ ہے کہ خالق کو اس پہ ناز بھی ہے برائے ناز بہت کی وہ نماز بھی ہے اسی کا سر نہاد اسی کا سر نہاد لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ نماز نفس کی عزت ہے اولیاء کی قسم نماز دین کی حرمت ہے اوصیاء کی قسم نماز حسن شرافت ہے انبیاء کی قسم نماز قصہ وحدت ہے کبریاء کی قسم نماز خیر عمل کی طرف بلاتی ہے نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے نماز قبر تلک ساتھ ساتھ جاتی ہے آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی سینٹرل پولیس آفس کراچی آمد مرکزی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سمیت سندھ سمارٹ سرولنس سسٹم روم کا بھی دورہ کیا وزیر داخلہ نے چہلم امام حسین علیہ السلام کے سیکیورٹی انتظامات کے لیے جاری مانیٹرنگ اقدامات کا جائزہ لیا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے افسران سے بعد از سیکیورٹی مانیٹرنگ بریفنگ مزید ہدایات دی وزیر داخلہ سندھ ضیاء لنجار کی سینٹرل پولیس آفس کراچی آمد مرکزی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سمیت سندھ سمارٹ سرولنس سسٹم روم کا بھی دورہ کیا ہے وزیر داخلہ نے چہلم امام حسین علیہ السلام کے سیکیورٹی انتظامات کے لیے جاری مانیٹرنگ اقدامات کا جائزہ لیا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے افسران سے بعد از سیکیورٹی مانیٹرنگ بریفنگ مزید ہدایات دی ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو کا چہلم کے جلوس کا دورہ پولیس چیف کے ہمراہ سینئر پولیس افسران بھی جلوس میں موجود تھے ایڈیشنل آئی جی کراچی نے جلوس کے منتظمین سے ملاقات کی ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو کا چہلم کے جلوس کا دورہ پولیس چیف کے ہمراہ سینئر پولیس افسران بھی جلوس میں موجود تھے ایڈیشنل آئی جی کراچی نے جلوس کے منتظمین سے ملاقات کی انوشا جعفری ہمارے ساتھ موجود ہیں اپڈیٹ کیجیے گا جی بالکل دیکھیے ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو کا چہلم کے جلوس کا دورہ ہوا ہے پولیس چیف کے ہاں پولیس افسران بھی جلوس میں موجود تھے ایڈیشنل آئی جی کراچی نے جلوس کے منتظمین سے ملاقات کی ہے اس موقع پر پولیس چیف نے جلوس کے سیکیورٹی اقدامات کا بھی جو ہے وہ مکمل جائزہ لیا ہے جبکہ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے جو ہے وہ ڈیوٹی پر مامور افسران و اہلکاروں کو اہم ہدایت بھی جو ہے وہ جاری کی ہیں جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے کا کراچی ایئرپورٹ کا دورہ ڈی جی ایف آئی اے کو کراچی زون کی جامع کارکردگی رپورٹ پیش کر دی گئی ڈی جی ایف آئی اے نے کراچی زونز کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے دورے کے دوران ڈی جی ایف آئی اے نے کراچی زون کے اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت بھی کی ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے کا کراچی ایئرپورٹ کا دورہ ڈی جی ایف آئی اے کو کراچی زون کی جامع کارکردگی رپورٹ پیش کر دی گئی انوشا جعفری ہمارے ساتھ ہیں اپڈیٹ کیجیے گا جی بالکل دیکھیے ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے کا کراچی زون کراچی ایئرپورٹ کا دورہ ہوا ہے ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے احمد اسحاق جہانگیر نے کراچی زون کا تفصیلی دورہ کیا دورے کے دوران ڈی جی ایف آئی اے نے کراچی زون کے اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی ہے اجلاس میں ڈی جی ایف آئی اے کو کراچی زون کی جامع کارکردگی رپورٹ جو ہے وہ پیش کی گئی ہے اجلاس میں حوالہ ہنڈی جعلی ادویات اور انسانی اسمگلروں کے خلاف کارروائیوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا ڈی جی ایف آئی اے نے کراچی زونز کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا اجلاس کے اختتام پر آئندہ کے لائے عمل کو زیر غور لایا گیا ڈی جی ایف آئی اے نے
इंसानी स्मगलिंग, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, ममनूअ अद्वियात की तैयारी में मुलविस अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जो है वो मजीद तेज करने की हिदायत जारी की है। इश्तहारी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी स्क्वाड तश्कील दिए जाएँ। DGFIA का कहना है कि ज़ेर इल्तवा इंक्वायरियों और मुकदमात की तफ्तीश को जल्द मुकम्मल किया जाए। अहमद इसाक जहांगीर ने कहा है कि इंक्वायरी और मुकदमात की तफ्तीश में मेरिट को यकीनी बनाया जाए। अफसरान की कारकर्दगी को जांचने के लिए माहाना बुनियादों पर मॉनिटरिंग का इनेकाद भी जो है वो किया जाए। जबकि DGFIA का मजीद कहना था कि मुसाफिरों को तजावीज़ से ही इमिग्रेशन सर्विसेज को मजीद बेहतर किया जा सकता है। मुसाफिरों को बेहतरीन इमिग्रेशन सर्विसेज फराहम करना अवलीन तरजीह है। DGFIA का कहना था कि गफलत की शिकायत की सूरत में मुतालिका अफसर के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कराची में बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार हो गया। शहर की मज़ाफ़ात में तेज़ बारिश। गुलशन हदीद, स्टील टाउन, गडाप में मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद घंटों में मानसून का स्पेल शहर भर में असरअंदाज होगा। मज़ीद बताएंगी नमरा रियासत। बिल्कुल जी, कराची वालों का जिस चीज़ का इंतज़ार था आखिरकार वो हो गया और कराची में बादल बरस पड़े हैं। कई रोज़ से मौसम खुशगवार होने का मुंतज़िर थे शहर कराची के लोग। अब जो है आज जिस तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से चंद रोज़ कबल ही तेज़ बारिशों की पेशगोई की गई थी और इस स्पेल के मद्देनज़र कहा गया था कि शहर भर में तेज़ बारिशें होंगी, जिसका आगाज़ 26 अगस्त की शाम से जिसका सिलसिला शुरू होगा। और इसी के पेश नज़र हम देख रहे हैं कि शहर के मज़ाफ़ात में जो है अब बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। न सिर्फ बारिश बल्कि तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है शहर के मज़ाफ़ात में, जिनमें स्टील टाउन, पोर्ट कासिम, गडाप और मलीर में भी जो है वो बारिश शुरू हो चुकी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 से 2 घंटे में शहर भर में बारिश का सिलसिला शुरू होगा। कोरंगी और मलीर में भी जो है वो बादल बरसेंगे। इस वक्त मतलब जो है वो जज़वी अबरालूद है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो दर्जा हरारत है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवाओं का भी सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन जो हब्स की शिद्दत है वो बरकरार है, जिससे गर्मी महसूस की जा रही है शहर भर में। लेकिन मज़ाफ़ात में जिस तरह से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है उससे मौसम जो है उसमें कुछ तब्दीली आई है, मौसम खुशगवार हुआ है। अब शहर वालों को इंतज़ार है कब जो है वो बादल जो है शहर में बरसेंगे, जिसमें महकमा मौसमियात के मुताबिक मशरिक़ और शुमाल में जो है वो तेज़ बारिशों का सिस्टम दाखिल होगा और उसके ज़ेर असर शहर में बादल बरसेंगे। जिस तरह से तेज़ बारिशों की पेशगोई की गई थी उसके मद्देनज़र शहर भर में रेन एमरजेंसी भी नाफिज की गई है। इदारों को मुतहरिक किया गया है, बल्दियाती इदारों को भी जो है वो कहा गया है कि वो सड़कों पर नज़र आएँ और तेज़ बारिश के बाद जो आब निकासी उसकी सूरत हाल को बेहतर बनाएं। आज से ये सिलसिला शुरू हुआ है जो कि तकरीबन 3 से 4 रोज़ तक ये स्पेल जारी रहेगा और महकमा मौसमियात के मुताबिक इस स्पेल के पेश नज़र शहर में तेज़ बारिशों का इम्कान है। जी, ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद ने एफ के सामने मुतालबात रख दी है। FPR में पहले से रजिस्टर्ड ताजिरों को ताजिर दोस्त स्कीम से मुस्तस्ना करने का मुतालबा कर दिया। बात करेंगे काविश मेमन से। काविश, बताइएगा। देखें, ताजिर दोस्त स्कीम का मामला है। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि ताजिरों ने 28 अगस्त को हड़ताल की कॉल भी दी है और इससे पहले ब्रेक थ्रू होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि FPR ने कल ताजिरों को मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद बुला लिया है। इस हवाले से ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद ने FPR के सामने मुतालबात भी रख दिए हैं। ताजिरों का मुतालबा है कि FPR में पहले से रजिस्टर्ड ताजिरों को ताजिर दोस्त स्कीम से मुस्तस्ना करार दिया जाए। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि ताजिर दोस्त स्कीम में नए रजिस्टर्ड ताजिरों को शामिल किया जाए। टैक्स के हवाले से बात की जा रही कि 100 रुपये से 1000 रुपये तक वसूल किए जाएं, जो हर ताजिर बासानी दे सके। सेल्फ असेसमेंट स्कीम की भी इसमें बात की गई है कि वो मुतारिफ करवाई जाए, जिसको ऑडिट से 3 साल के लिए इस्तिस्ना हासिल हो। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को आसान बनाने का भी इसमें मुतालबा किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सिंध में आज से मानसून के नए स्पेल की एंट्री। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है। नए सिस्टम के तहत कराची में 200 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के है। मज़ीद तफसीलात आज जमाली की रिपोर्ट में। सिंध में आज से मानसून के नए स्पेल की एंट्री। महकमा मौसमियात के अलर्ट पर सिंध हुकूमत ने भी तैयारियां कर ली। वजीर आला हाउस में मुतवक्के बरसात से निपटने के लिए अहम बैठक। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में चीफ मेट्रोलॉजिस्ट की ब्रीफिंग। इजलास को बताया गया कि 28 अगस्त से बारिशों का नया सिस्टम सिंध में दाखिल होगा। नया स्पेल 31 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसमें तेज बारिश का इम्कान है। सरदार सरफराज ने बताया कि बारिश का दूसरा और खतरनाक स्पेल सितंबर के पहले हफ्ते में दाखिल होगा।
दूसरे स्पेल से कराची में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के है। तूफानी बारिशों के सबब समंदर में भी तुगयानी का खतरा है। इजलास के दौरान वजीर आला ने कमिश्नर कराची को अहम हिदायत जारी कर दी। मुराद अली शाह ने तमाम डिविजनल कमिश्नर्स को जरूरी इंतजामात करने की भी हिदायत की। तमाम बल्दियाती इदारों को भी मुतहर्रिक रहने के अहकाम जारी कर दिए गए। इजलास के दौरान मेयर कराची ने भी नालों की सूरत हाल से मुतालिक तफसील बताया कि KMC के नालों और वाटर कॉर्पोरेशन के नकासी आपको बेहतर किया गया है। वजीर आबाशी जाम खान शोरो ने बताया कि दरियाए सिंध के किनारे हिफाजती बंदों पर मशीनरी पहुंचा दी गई। आजिज जमाली, कराची। जस्टिस नेमतुल्लाह ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने हल्फ लिया। जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी की वापसी तक जस्टिस नेमतुल्लाह कायम मुकाम चीफ जस्टिस के फराइज सर अंजाम देंगे। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की तकरीब हल्फ बर्दारी। सिंध हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस नेमतुल्लाह ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस से ओहदे का हल्फ लिया। मैं अपने फ़राइज़ व कारए मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक सर अंजाम दूंगा। चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी की वापसी तक जस्टिस नेमतुल्लाह कायम मुकाम चीफ जस्टिस के फराइज सर अंजाम देंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी में जजेस सीनियर वकला ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। FPCCI के इलेक्ट्रिक पर तनकीदी वार। FPCCI पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन कहते हैं कि एक तरफ मुल्क के दीगर डिस्कोज ने बिजली फी यूनिट 31 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त की है, लेकिन के इलेक्ट्रिक की गंगा उल्टी बह रही है। इस हवाले से अशरफ खान की रिपोर्ट। कि इलेक्ट्रिक की बिजली मजीद महंगी करने की दरख्वास्त। FPCCI पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ात। FPCCI पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन ने कहा कि आवाम, ताजिर और सनतकार बिजली की मुसलसल बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। हैरानकुन बात यह है कि मुल्क भर में डिस्कोज ने बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 31 पैसे कमी की दरख्वास्त की है, जबकि के इलेक्ट्रिक ने जुलाई के लिए FCA की मद में 3 रुपये 9 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त की है, जो समझ से बाहर है। ये बड़ी ज़्यादती की बात है। और अभी इन्होंने जो 3 रुपये 9 पैसे की एडजस्टमेंट मांगी, आप इनकी सर्विसेज तो देखें कि 10-10, 12-12 घंटे बिजली के ब्रेक डाउन्स हैं, उसमें शट डाउन्स हैं, लोगों को बिजली नहीं मिलती और लोगों को अच्छी सर्विस नहीं मिलती, बिलिंग के इश्यूज़ हैं, उनको सर्विस अच्छी नहीं है, उनके जो फॉल्ट आते हैं उनकी रिपेयर नहीं है, तो बेशुमार इनके प्रॉब्लम्स हैं। मैं समझता हूँ कि ये इनकी जो 3 रुपये 9 पैसे अभी जो इन्होंने एडजस्टमेंट मांगी है, ये तो फिर एक ऊँट की कमर के आखिरी तिनके वाली बात है। इसमें पता नहीं ये क्यों लोगों को इमोशनल करना चाह रहे हैं और क्यों इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पे बंद कराना चाह रहे हैं। मियां जाहिद हुसैन ने कहा कि IPPs की कैपेसिटी चार्जेस की मद में 20 रुपये फ़ी यूनिट बड़ा बोझ है। हुकूमत से कैपेसिटी चार्जेस और दीगर चार्जेस ख़त्म करने का बार बार मुतालबा कर रहे हैं। हमारे हिसाब से तो ये जो कैपेसिटी चार्जेस पे कर रहे हैं 20 रुपये यूनिट या 2100 अरब रुपये टोटल पाकिस्तान में पे करने हैं, यही नाजायज़ हैं और इसको ख़त्म होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो 1200 अरब रुपए की बिजली चोरी और लाइन लॉसेज हैं, उससे भी हमारे हिसाब से तकरीबन कोई 4-5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कीमत कम होती है अगर उन चीज़ों के ऊपर काबू पाया जाए। तो अरसा दराज से हमारी ये गवर्नमेंट से डिमांड है और शिकायत है कि भाई ये चीज़ें जो हैं इनको ख़त्म किया जाए। FPCCI पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड चेयरमैन ने कहा है कि बिजली की कीमत हर माह FCA की मद में बढ़ना जुल्म है। पैदावारी लागत बढ़ने से इंडस्ट्री का चलना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ अशरफ खान, सिटी 21। स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।